Mr. Prashant Hota, President and Group Head of CSR and Education of Jindal Steel and Power. Thank you, sir, for gracing us with your presence. Next, we have Rishi Tiwari of BIMSTEC Foundation. He works on the rehabilitation of prisoners by establishing libraries. Our next speaker is Vivek Prakash, Vice President and Head of CSR at Jubilant Ingrevia Limited. And lastly, we have Rajan Kumar, Director, Vision Access Program, Vision Spring. I would request Mr. Kumod Pramar to please come on the stage and facilitate the speakers. First, we have Mr. Prashant Hota. Can we have a huge round of applause for the speaker? Our next speaker is Mr. Rishi Tiwari of BIMSTEC Foundation. We are honored to provide this memento to you, sir, Mr. Rishi. Can we have a huge round of applause for sir? Our next speaker is Mr. Vivek Prakash, Vice President and Head of CSR at Jubilant Ingrevia Limited. We are honored to have you here with us, sir. Lastly, we have Rajan Kumar, Director, Vision Access Program, Vision Spring. Thank you, sir, for gracing us with your presence. Please accept our memento. Can we have a huge round of applause for the dais? I would humbly request our first speaker, Mr. Prashant Hota, to kindly take the podium and enlighten the audience. Sir, please. Good afternoon, all. Jai Hind. रुसन जी का फ़ोन आया था और उसके लिए मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूं कि आज बहुत ही प्रख्यात और बहुत ही सेंसिबल ऑडियंस के साथ मुझे मिलने का ये सौभाग्य मिला है। और मेरे साथ जो डायस में है सभी को मैं अभिनंदन करता हूं। सो माइंड डेवलपमेंट फ्रेटर्निटी, all the esteemed speakers on the dais, Rusinji and his team, and those who are my co-travelers. Very interesting, learning and experience, the topic is. I'm a very topical man. I never speak. Yesterday also I was speaking in a CAI forum before the principal secretaries and all of the government. So, I always speak on the topic, the learning and experience. I think, मैं जिस उम्र में हूँ, it's better to speak about my experience and my learning. That may ignite you, that may actually, arouse some kind of need in you, that right time to breathe for the country and right time to look after the humanity. कोविड-19 ने हमको क्या सिखाया? कोविड-19 ने हमको एक चीज सिखाया, आप लोग उसको महसूस किए होंगे या नहीं, I don't know. Humanity has been caged out. Humanity has been caged in. Rest of the creations were moving free, scot free. किसी को कुछ नहीं हुआ था. Only humanity को केज में डाल दिया गया था. That's how nature has responded to the humanity. That right time that you have tortured me a lot, now you face what I am undergoing. ये मेरा लर्निंग था कोविड में. जो हमने किया है वो आप लोगों को पता है. 5,000 टन ऑक्सीजन हम लोग स्टील और पावर प्रोडक्शन को, यू नो दैट आई एम प्रशांत होता, प्रेसिडेंट एंड ग्रुप हेड ऑफ सीएसआर एजुकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी विद जिंदल स्टील एंड पावर. तो जिंदल ने 5,000 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन अक्रॉस द हॉस्पिटल्स ऑफ इंडिया भेजा. कहाँ पर क्रायोजेनिक्स टैंक भेजा.
लाखों सिलेंडर्स भेजा सो दैट माई ह्यूमैनिटी, माई नेशन कैन ब्रीथ. 20 lakh hot cooked meals were sent, and we could serve on the road. And that I give my heartfelt wishes to my NGO partners, because ये culture है जो कुछ corporates में vendor बोलना NGO को, that I hate. That's the only word I can use for that. There are partners, but for them we could reach 20 lakh hungry stomach. And it was the message from Mr. Navin Jindal the next day. The next day the lockdown was there. I got a phone call from Mr. Jindal. Mr. Hota, nobody should sleep hungry. Nobody around you should sleep hungry. And you just ensure nobody in the country sleeps hungry. If anyone is sleeping hungry, then as a nation we have failed. So that's the kind of learning I had, partnering, collaboration, then going together. I will start from my life. ये जीवन की हर पन्ना एक कहानी है. ये मेरा एक उड़िया पोएम है और जिसको मैं हिंदी में बोलता हूँ. ये जीवन की हर पन्ना एक कहानी है, और एक पन्ना में, हर कहानी में एक सीख है. कुछ सीख तो इतिहास बन जाता है, लेकिन कुछ सीख ऐसा है जो कल का इतिहास बनाता है. तो यही सीख ने मुझे, मैं उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में था, वहाँ एक चीज़ मैंने सीखा, क्योंकि ये लर्निंग और एक्सपीरियंस का बात हो रहा है. समय कम में मैं आपको जितना भी छोटी सी एक्सपीरियंस है और जितना छोटी सी लर्निंग है इसके बारे में बोलता हूँ. सरकार एक नॉलेज बैंक है, आप एक्नॉलेज करो या ना करो. सरकार के पास जितना नॉलेज है किसी के पास नहीं है. आज हमको टेलीफोन से, रेलवे से, रोड से, ब्रिज से जो कुछ भी मिला है सरकार से मिला है, सरकारी ब्रेन से मिला है. सरकार एक नॉलेज बैंक है. लेकिन अभी वही बात हो रहा था, नोइंग और डूइंग. नोइंग और डूइंग में अंतर हुए, ये चीज़ हमको पता है. दैट्स वाई परहैप्स अभी सरकार को रियलाइजेशन हुआ है कुछ सालों पहले, व्हेन आई वाज वर्किंग डायरेक्टली विथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी विदर्भा में, जो फार्मर सुसाइड चल रहा था उसका कंट्रोल में. तो उसमें पता चला कि एनजीओज आर हाउ वाइटल दे आर, एंड द सिविल सोसाइटी को एनरिच करने के लिए कितना रोल है. तो सरकारी में हमने देखा कि टॉप डाउन मेथड में चलता है. इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो बहुत है, बट एराटिक इम्प्लीमेंटेशन है, वल्नरेबल टू पॉलिटिकल चेंज है. सबसे बड़ी चीज़ होता है जो चेंज ऑफ गार्ड में, जो टोटल भावना, टोटल थॉट प्रोसेस, टोटल कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. असल चीज़ क्या होता है कि लोगों का तो लोग सुनते हैं वहाँ, लेकिन एक चीज़ होता है कि लोगों से ज्ञान लेने के बाद ये कुछ लोगों को सरकार में पता चलता है कि लोग कम जानते हैं, हम ज़्यादा जानते हैं. तो व्हेन पीपल आर नॉट इन द ड्राइविंग सीट, सो सस्टेनेबिलिटी इज क्वेश्चनड. दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन सरकार. अदरवाइज उनका पैसा का कमी नहीं है, उनका नॉलेज का कम नहीं है, उनका ऐसा कोई भी चीज़ कमी नहीं है जो सरकार को आप बोल सकते हैं कि बिकॉज इट इज अ सरकारी स्कीम इट कुड नॉट मूव. इट इज़ बिकॉज ऑफ द सोच, एंड इट इज़ बिकॉज द मोटिवेशन इन देम, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सम काइंड ऑफ backlessness in them, that people are not the drivers. If people are in the front line, everything succeeds. That is my learning from the government. I will keep it very brief because time is short. Then after my Indian Defence Account Services, my stint with the Central Bank of India, I joined my temple of learning, my dream job, that is NABARD. So I was the first batch of direct recruit in NABARD, very first batch. We created NABARD, जहाँ मेरा concept of learning में पहले शुरू हुआ था watershed program. At that time मेरे उम्र के जितने होंगे, एटलीस्ट ये आपको अगर पानी और मट्टी के बारे में कुछ पता है तो आपको पता होगा कि एक कंसेप्ट चल रहा था महाराष्ट्र में. मैं महाराष्ट्र में, ज़्यादातर महाराष्ट्र इज माई कर्मभूमि, ओडिशा इज माई जन्मभूमि, बट महाराष्ट्र में ये चल रहा था पानी आड़ुआ पानी जीरुआ. दैट मीन्स हार्वेस्ट द वाटर एंड
यूज द वाटर, सेव द वाटर एंड यूज द वाटर। वाटर शेड कंसेप्ट में हमने उसको गलत प्रमाण किया है। 162 वाटर शेड मैंने हैंड्स ऑन किया है, जहां की हमको पता चला है माटी आड़ुआ पानी जिरुआ, सेव द सॉइल एंड कंजर्व द वाटर। That is the another learning which I got again from my NGO friend, again from the people, from the farmers, जो शेतकारी भाइयों को मैं दिलों से प्रणाम करता हूँ। 140 करोड़ पॉपुलेशन, 280 करोड़ थाली एक दिन में वो दे रहे हैं देश को, 280 करोड़ थाली। That is the contribution of the farmers amongst these vagaries of nature। वहाँ हमने ये सीखा, और ये भी सीखा कि ट्राइबल्स के साथ जो स्ट्रेट जैकेट मेथड में काम होता है वो कितना गलत है। कोई कलेक्टर ने सोचा कि इनको गाय दे दे, अरे ट्राइबल्स लोग तो दूध पीते ही नहीं है, वो तो उसको जो काफ का जूठा करके समझते हैं, वहाँ कैसे सक्सीड करेगा। वहाँ सीजनल एग्रीकल्चर शुरू हो गया। बट आई हैव लर्न फ्रॉम वाडी प्रोग्राम, आई हैव टेकन डॉक्टर अब्दुल कलाम जी to two of my programs, one in Gujarat, in Valsad district, another in Nasik in Maharashtra. There, he described in the joint parliament session that Wadi is the gateway to tribal development. क्योंकि tribals are symbiotic only with the trees, only with the tree plantation, only with the horticulture. उनको आप पेड़ तक ला सकते हो क्योंकि पेड़ का संबंध उनका जड़ तक है। ये मेरा लर्निंग हुआ है। जबकि रिवर्स माइग्रेशन मेरे आंख के सामने मैंने देखा, गांव जो है वो आदमी नहीं थे, कुछ लेडीज वहां थे, और गाय बछड़ जो है वो बाहर, जो आपका जो गोट्स है वो बाहर घूम रहे थे। इकोसिस्टम टोटल खराब हो गया था, और उसी जगह में 500 एकड़, कहाँ 1000 एकड़, कहाँ 2000 एकड़ तक वाड़ी मतलब ऑर्चर्ड्स हमने पैदा किया है, हमने शुरू किया है। एंड आपका इनकम लेवल जो है एट दैट टाइम 6000 रुपीज पर एनम, दैट वाज द इनकम इन 1990 का फिगर मैं बोल रहा हूँ। 6000 से नाउ यू गो एंड सी इन 21 स्टेट्स द इनकम हैज एवरेज एज पर माय लेटेस्ट रिपोर्ट, जस्ट इमेजिन 6000 करोड़ पर एनम to 4 lakh rupees per annum. That is the income change in the Wadi project, which is a agro-horticultural project. That is how tribals can contribute. क्योंकि उनको तो हमने ऊपर छोड़ दिया। हम लोग तो बहुत चालाक आदमी है, हम लोग तो नीचे चले आए, हम लोग तो रिवर तक चले आए, हमने रिवर बेड में एग्रीकल्चर किया है, उन्होंने तो फॉरेस्ट का ऊपर विश्वास किया है। हमको सीड का कमाल के बारे में पता चल गया। इतना दौड़ेंगे क्यों जंगल में, अगर हम 5 सीड डाल देते तो हमारा खाना 1 साल के लिए बन जाता है। तो एग्रीकल्चर हमने सिखाया, जो हमने जंगल काटना शुरू किया। तो फर्स्ट एनिमी ऑफ फॉरेस्ट वाज एग्रीकल्चर। Okay, that is something people think agriculture means environment. It is wrong. It is wrong. Actually, agriculture first started challenging this thing. Then came the industry. Then industry वालों ने क्या किया, उनको जमीन चाहिए था। जब उनको मिनरल्स का जरूरत हुआ तब पहाड़ का ऊपर चढ़ने लगे। तब फिर पहाड़ी में जो आदमी शुरू से है वो सोचता है भाई आप क्या कर रहे हैं ना, आपका अंदर यहाँ लोहा है, यहाँ कोयला है, यहाँ वो है। भाई हमको तो पता नहीं था, हम तो हजारों साल से यहाँ रहते हैं। ये मिट्टी के नीचे क्या है, तो हम लोग ने नियम बना दिया, मिट्टी का ऊपर आपका है, मिट्टी का नीचे सरकार का है, तो मिट्टी के नीचे वाला हमारा है, आपको नीचे जाना पड़ेगा। भाई हमको कैसे नीचे जाना पड़ेगा? हम जब नीचे जाएंगे हमको तो कुछ पता ही नहीं है नीचे क्या करना है। वी डोंट नो एग्रीकल्चर, वी डोंट नो डायरी। आप क्या बोलते हो? Tribals are never symbiotic with seasonal agriculture. That is my learning. Tribals are never symbiotic with dairy. That is my learning. Tribals are symbiotic with trees and the goats, small animals. If you want to do anything with the tribals, start with that. When I landed in private sector in Vedanta, in Lanjigarh, तो मैंने देखा कि वहाँ जाके malaria, G6PD malaria, that doesn't respond to chloroquine. Many of you must be knowing, if you give chloroquine, they will have diarrhea, the patient will die of dehydration. तो लोगों को हम जब मेडिसिन दिया है, लोग उसको छत का ऊपर रख देते थे। I don't know anybody is getting bored with this because this is learning and experience and learning. Yeah.
तो लोग उसको छत का ऊपर रख देते थे। तो पहले भगवान खाएंगे, उसके बाद मैं खाऊंगा। भगवान खाते नहीं है, मैं खाता नहीं हूं। तो बेसिकली वहीं से शुरू हुआ था हमारा काम कि कैसे लोगों के साथ संबंध जोड़ना। माइनॉरिटी में अभी मेवात का बात हो रहा था, तो मेवात में हमने भी किशोरी एक्सप्रेस प्रोग्राम का जिंदल स्टील एंड पावर से हम लोग उसको रेप्लिकेट किया है। वहाँ देखा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी और ट्राइबल दोनों के साथ काम करने के लिए दिलों तक पहुँचना पड़ेगा। जिस्म की बात नहीं है यारो, दिल तक पहुँचना है। लंबी सफ़र है यारो, वक्त लगता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन एक बार आप संबंध जोड़ दिया उनके साथ, तब आप जाके देखो नूर डिस्ट्रिक्ट में, जिसको मेवात बोल के बोला जाता है, हजारों लड़की अभी स्कूल जाते हैं, उनका एनीमिया लेवल चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं, आयरन टैबलेट्स लेते हैं। व्हाट ए चेंज देयर, एंड द गर्ल्स आर टेलिंग वी हैव नेवर सीन ए हेल्थ कैंप इन आवर लाइफ। आई एम टॉकिंग ऑफ मेवात, जो कि अभी सीताराम गुप्ता जी बताए थे। तो ये जो CSR का जो एथिकल मोरल जितना आर्गुमेंट्स है, ये मैं पढ़ाने आपको नहीं आया हूँ, मैं एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज कि एथिकल के बारे में जब बताया गया CSR क्यों करना है, तो गांधी जी का हम हमेशा नाम लेते हैं, क्योंकि ये ट्रस्टीशिप का बात आता है कि व्हाट एवर प्रॉपर्टी वी क्रिएट इट इज ए ट्रस्ट, तो इट हैज टू बी गिवन बैक टू द सोसाइटी। नेहरू जी उसको गेव इज ए वेरी वेरी वर्किंग मॉडल, ब्यूटीफुल वर्किंग मॉडल दिए है। ही मेड ए सोशलिस्ट कंपोजिशन ऑफ द एंटायर थिंग। The entire thing belongs to the society, and it has to be, it can be under the private this thing, but then it has to be under the social kind of ownership. But उसमें जो हमने देखा कि finally that thing I have learned that CSR हो सकता है, you are serving the society and everything, but look at the mineral industry. इट इज ए कंपल्सन फॉर यू, बिकॉज आपको अगर मिनरल मेटल्स में काम करना है तो आपको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस का ऊपर काम करना है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस में आपका जंगल भी जाता है, रास्ता भी जाता है, प्लेग्राउंड्स भी जाता है, ग्रेवयार्ड्स भी जाता है, स्कूल्स भी जाता है, एंड उसमें कोई लैंडेड क्लास, कोई लैंडलेस क्लास, देयर इज एब्सोल्युटली नॉट ए डिफरेंस। एवरीबॉडी हैज इक्वल एक्सेस टू दिस राइट्स। सो इफ यू जस्ट गिव कंपनसेशन टू द लैंडेड पीपल एंड फील दैट आई हैव डन ए वेरी वेरी डिसेंट जॉब, वेरी वेरी इक्विटेबल जॉब, कहीं ना कहीं चीज गलत हो ही जाता है। तो एक लर्निंग ये होता है कि जब कहीं डिस्प्लेसमेंट का बात होता है, कहीं लैंडलेस का बात आता है, यू हैव टू टेक द लैंडेड एंड द लैंडलेस एक साथ आपको लेना है। ये मेरा सोशल लर्निंग था। उसके बाद आया कि भाई CSR का प्रोग्राम तो इतना अच्छा होता है, देन व्हाई देयर इज नो सस्टेनेबिलिटी, व्हाई द डोनर सिंड्रोम इज कमिंग। आधी रात में क्यों फोन आता है, होता जी मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे मेडिसिन भेज दो। दिस इज कॉल्ड डोनर सिंड्रोम। ये डोनर सिंड्रोम आने का रीजन ये है कि वी आर नॉट डूइंग ए प्रॉपर नीड एनालिसिस, वी आर नॉट क्रिएटिंग ए प्रॉपर नीड विंडो कि व्हिच इज ए एक्सप्रेस्ड नीड, व्हिच इज ए अनएक्सप्रेस्ड नीड, दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड, एंड व्हिच इज ए सप्रेस्ड नीड। बट द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ माई फ्रैटर्निटी इज दैट ए नीड व्हिच इज नेवर फेल्ट, नेवर एक्सप्रेस्ड, बट ए रियल नीड। That you will see in the tribal area कि माल न्यूट्रिशन उनको पता ही नहीं है। पानी, अच्छा पानी चाहिए उनको कोई पता ही नहीं है, अच्छा एजुकेशन चाहिए उनको पता ही नहीं है। बट यू हैव टू गिव देम द, इंडक्ट देम द कैपेसिटी टू ड्रीम, टू रियलाइज व्हाट इज देयर नीड। ये मेरा लर्निंग था, तभी से हम लोग ये काम शुरू किया था। अनदर थिंग, जब डिस्प्लेसमेंट हुआ है 45 ईयर्स 50 ईयर्स एज बंदों को ले आया कि भाई चलो आपका डिस्प्लेसमेंट है, आपको जॉब मिल जाएगा, तो आपको आके ITI का ट्रेनिंग लेना है, आपको वेल्डर बनना है, प्लम्बिंग बनना, प्लम्बर बनना है। तो मैं प्लम्बर बन पाऊंगा क्या अभी इस उम्र में? मेरा बेटा बन पाया, मैं तो बन नहीं पाऊंगा। तो स्किल ट्रांसप्लांटेशन इज ए बिग चैलेंज एक्चुअली। जो एग्जिस्टिंग स्किल में जो लोग काम कर रहे हैं उसी को प्रमोट करना है, ये मेरा लर्निंग था। और कोलाबोरेशंस के बिना कोई भी चीज़ सस्टेनेबल करना है, कम्युनिटी को फ्रंट सीट में रखना है, और आपको ग्रास रूट लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना है। जब हमने किशोरी एक्सप्रेस का शुरू किया है, एनीमिया का, किसी को पता नहीं है कि हीमोग्लोबिन कम होने से नोबडी गोज टू ए डॉक्टर फॉर चेकिंग द हीमोग्लोबिन अनलेस दे हैव फीवर और अनलेस दे हैव समथिंग, बट इट इज द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन राइट फ्रॉम द एडोलेसेंट गर्ल्स दैट अफेक्ट्स द IMR एंड द MMR।
ये मेरा डिस्कवरी था। जबकि सीडीएमओ और कलेक्टर हमको चिट्ठी दे रहे थे, लो बर्थ वेट बेबीज पैदा होते हैं, आप उनको 500 रुपया का खाना दे दीजिए। तब हमने जब घर घर का रिसर्च किया है, देखा कि एडोलेसेंट गर्ल से ये प्रॉब्लम होता है, कि वहीं से हीमोग्लोबिन शुरू होता है, वहीं से हीमोग्लोबिन का कमी शुरू होता है। ये मेरा लर्निंग था। और आज मैंने देखा कि अगर ये पूरा सीएसआर का सिस्टम को हमको सस्टेन करना है, वी हैव टू कोलैबोरेट विद द पीपल एंड द गवर्नमेंट। विदाउट कोलैबोरेशन nothing is going to sustain. People are number one. We are all right-sided zeros. Okay, maybe a bank, maybe government, maybe corporate, we are all, एक को हम 1000 कर देते हैं, लाखों कर देते हैं, करोड़ों कर देते हैं, we are right-sided zeros. Forget the people, we all are zeros. हमारा कोई मतलब नहीं है। लोगों को फ्रंट लाइन में रखना है, एक में रखना है। उल्टा आप कोलैबोरेशन करो, हम एक है, कल बैंक ज्वाइन करेगा 11 बन जाएंगे, कल गवर्नमेंट ज्वाइन करेगा 111 बन जाएंगे, कल और कोई हमारा साथ यूनिवर्सिटी आ जाएगा, हम 1111 बन जाएंगे, हम लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे। तो कोलैबोरेशन इज द दिस थिंग। अनदर थिंग जो कि एक लर्निंग, बड़ा लर्निंग है, डिस्क्लोजर। आप लोग अच्छे काम करते हो, डिस्क्लोज भी करो ना, खुल के डिस्क्लोज करो। आपका एनर्जी एफिशिएंसी है, आपका कार्बन एमिशन है, आपका जो भी सीएसआर में इंपैक्ट है, खुल के डिस्क्लोज करो। आप जितना डिस्क्लोज करोगे इतना आपका क्रेडिबिलिटी बढ़ेगा। दैट आई हैव सीन। बिकॉज आप अगर कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, आपका जो भी कमी है अगर डिस्क्लोजर में नहीं आता है, पीपल टेक इट एज ए पीआर मैकेनिज्म, नॉट ए सस्टेनेबल मैकेनिज्म। तो आपको डिस्क्लोजर में बिलीव रखना है। एंड लास्ट वन व्हिच आई वांट टू टेल यू इज डाटा। आपका डाटाबेस बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आपका डाटाबेस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हमको ये जो हमने 5000 टन ऑक्सीजन दिया लोगों को, एट दैट टाइम वी कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन आवर स्टील एंड पावर प्रोडक्शन अप टू द 25%, क्योंकि 24 घंटा हमको इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को हमको लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना था। एट दैट टाइम पूरी देश का ब्रीदिंग का इशू था, तो हमको सप्लाई करना था। तो हमने क्या किया, बेसिकली हमने डिजिटल टेक्नोलॉजी में गया, और डिजिटल टेक्नोलॉजी में हम सीएसआर डाटा भी मॉनिटर किया है। और ये चीज है कि डाटाबेस अगर नहीं है तब हमारा पास स्मार्ट नहीं है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंसी, चारों का हम नहीं कर रहे। तो ये सारा लर्निंग को लेके हम लोग आगे चल रहे हैं। एंड ट्रिपल बॉटम लाइन जो है, मैंने जॉन एल्किंगटन के साथ काफ़ी दिन जर्मनी में बिताया, वहाँ भी काफ़ी चीज़ सीखा। एक चीज़ करके मैं एंड करता हूँ, फार्मर्स का पेन एवरीवेयर है। मैंने जर्मनी में देखा, ठीक है, उनके पास इनोवेशन है, उनके पास ऑर्गेनिक फार्मिंग का फोकस है, उनके पास सब कुछ है। लेकिन मैंने जब जर्मन फार्मर को पूछा कि आपका रियली पेन पॉइंट क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो बोले कि हमको तो सरकार सब कुछ दे देता है, 50% हम जो कैश बनाते हैं, अगर मेरे पास 20 एकड़ ज़मीन है और 5 एकड़ मैं उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देता हूं, तो बाकी मुझे 50 जो मैं कमाता हूं उसका डबल मुझे सरकार दे देते हैं। तो मेरा कोई पॉवर्टी का इशू नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है आपका? मुझे बीवी नहीं मिलता। आई नेवर गेट ए वाइफ, नोबडी इज एग्रीड टू मैरी टू ए फार्मर। दैट इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम देयर। So everybody has a problem. So let us only see that equity कहाँ पर कैसे आएगा। हम लोग काम तो बहुत करते हैं, किसी का इनकम अगर 1000 से 20,000 बन जाता है और एक भाई का इनकम 5000 से 6000 होता है, हम बोलते हैं कि 20 + 6 13,000 हो गया एवरेज इनकम। एक्चुअली एक का 1000 बड़ा है, दूसरा का 10 गुना बड़ा है। जो इक्विटेबल इशू होता है वो कहीं ना कहीं इसको हमको देखना है। दिस इज माई लर्निंग। एंड लास्ट वन इज दैट, जो कबीर का याद आता है, फिर मैं यही चीज़ बोलता हूँ कि हवा चले जंगल में आग फैलती जाए, हवा चले जंगल में आग फैलती जाए। जब हवा जंगल में चलती है, जब आग होती है तो फैलती जाता है। जिस तरह इन्वेस्टमेंट आता है तो जितना जिसके पास पैसा है, जो हाफ्स है, जिनके पास पावर है, जिनके पास मनी है, वो लोग जो है वो फैट से फैटर बन जाते हैं। लेकिन उसी हवा चले जंगल में आग फैलती जाए, उसी हवा में एक छोटी सी दीपक मुरझा जाए। एक गरीब का दरवाजा में छोटी सी दिया जो है उसी हवा में मुरझा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट समटाइम ऑल्सो क्रिएट्स दिस प्रॉब्लम कि छोटी सी दिया मुरझा जाता है।
तो CSR का एक रोल है, आप माइक्रो एंटरप्राइजेस क्रिएट करो, बिकॉज व्हेन राउरकेला स्टील प्लांट वाज क्रिएटेड, आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट वाज 4,000 करोड़ एंड पीपल एम्प्लॉयड वर 44,000. Now Rourkela steel plant is investing 40,000 crore, people employed are 11,000 crore. Because point is that industries has become capital intensive. Only to stop pollution we have invested 8,000 crores in Ongul plant. Only to stop pollution. So it is become capital intensive. Let's create micro enterprises. Let's create options for livelihood. घर घर में हम लोग दिया जला पाएंगे अगर हम माइक्रो एंटरप्राइजेस पर काम करेंगे, अगर हम कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, अगर हम फॉरवर्ड लिंकेजेस करेंगे. इसमें एग्रीगेटिंग रहेगा, उसमें प्रोसेसिंग रहेगा, उसमें ग्रेडिंग रहेगा, उसमें पैकेजिंग रहेगा, ब्रांडिंग रहेगा, प्राइसिंग रहेगा. हर चीज में हम हाथ बटाएंगे तो कभी भी गरीबी नहीं रहेगा, प्रोवाइडेड we are focusing on micro enterprises. So Rushen ji, thanks a lot for your time, लेकिन for giving me time. लेकिन अगेन लर्निंग एंड एक्सपेंसेस से मेरा एक चीज़ याद आता है, सीखना है हमें उम्र भर. साथियों, ज्ञानियों का यही संस्कार है, मरने तक हम सीखेंगे. मैंने सरकार से शुरू करके केंद्र सरकार, राज्य सरकार से शुरू करके रिजर्व बैंक, नाबार्ड, प्राइवेट सेक्टर्स में, अभी मैं वेदांत में, जिंदल में, हर जगह काम किया. लेकिन हर वक्त मैं देखता हूँ मैं किससे सीखता हूँ. ज़्यादातर मैं NGO लोगों से सीखता हूँ, ज़्यादातर आप लोगों से सीखता हूँ, ज़्यादातर जो गरीब औरत है गांव में उनसे सीखता हूँ कि वो कैसे अपना ज़िंदगी में चिराग लेते हैं. एक्चुअली काफ़ी चैलेंजेस उनके पास है. दुर्गा माँ का 10 भुजा है ना, वो गाय को खिलाएंगे, पेरेंट्स को खिलाएंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ेंगे, फिर वो हस्बैंड को स्कूल छोड़ेंगे, घर साफ करेंगे. ऑलरेडी दुर्गा माँ का 10 भुजा है. फिर हम लोग जाके बोलते तुम इनकम जनरेशन एक्टिवेट करो तो 11 हाथ उनका निकल जाता है. तो फिर वो ड्रजरी रिडक्शन बहुत ही चीज़ है, वो भी सीखना पड़ता है. तो सीखना ही हमें उम्र भर. साथियों, ज्ञानियों का ही संस्कार है. तौरू सिखाता है उपकार सबका करो, सूर्य आलोक आलोक जीवन में सबका भरो. लेकिन हर एक पल रहो तुम यहाँ सीखते, कोई कैसा गुरु मन में लाए, क्योंकि प्रकृति गुरु है इस दुनिया में हमारा. प्रकृति गुरु है इस रूप में, इस दुनिया में हमारा. सीखने का मिला उसका उपकार, तो सीखना है हमें उम्र भर. साथियों, ज्ञानियों का यही संस्कार है. तो हमको सीखना है एंड वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर. लर्निंग इज द ओनली वे टू गो अहेड इन लाइफ. हम नहीं रहेंगे, आप नहीं रहोगे, सब लोगों को जाना पड़ेगा. लेकिन हम लोग जो छोड़ के जाएंगे उसी से भी लोग सीखेंगे, अगर हम जिंदगी में हर एक दिन से सीखते हैं. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir. I think one thought that will stay with me is घर घर में दिया जलाना है. And with the thought that we have for the summit of convergence, I think it resounds absolutely. Moving to our next speaker, we have Rishi Tiwari, sir, of BIMSTEC Foundation. Just a slight request from my side to all the speakers. Since we are quickly moving towards lunch, I would request you to adhere to the time limit of 5 minutes. Can we have a huge round of applause for sir? Thank you, and I'll try to summarize in before 5 minutes only. So, dignity is on the dais, and thank you, Rushen sir, for inviting me here. And एक छोटा सा bit, because it's a topic of learning, experience, partnership, and collaboration. So I'll speak on that only. मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से यहाँ कितने लोग हैं जो जेलों के सिस्टम से वाकिफ़ हैं. वहाँ पे ये एक देश की बहुत बड़ी जनता, बहुत बड़ी कम्युनिटी एक जेलों के अंदर है. एक सीधा सा हमारा परसेप्शन जाता है कि जो जेलों के अंदर है वो अपराधी है, और उनके साथ में एक कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए. लेकिन ये अर्ध सत्य है. फैक्ट ये है कि अगर आप लोग क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट आती है उसको पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें आंकड़े जो आ रहे हैं कि लगभग 70% पूरे भारत में लगभग 5.5 लाख महिला एवं पुरुष कैदी हैं जो विभिन्न लगभग 1500 जेलों में, there are different types of prisons in country, central jail, state jail, district jail, sub jail, and like other open jails, and they have been put over there. तो वहाँ अगर आप देखते हैं उस रिपोर्ट को आप देखते हैं तो पाते हैं कि लगभग 70% कैदी ऐसे हैं कि जो
either their education is nil, they are illiterate or likely illiterate. When I say likely illiterate means उनका मैट्रिक से नीचे का एजुकेशन है, जो सिर्फ पढ़ पाते हैं लेकिन और कुछ ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और इसका जो दूसरी पार्ट ऑफ इसी का जो फिगर है वो आप देखते हैं कि only 0.7% inmates are highly qualified over there. When we say highly qualified, means professionally qualified, MBA, engineer, doctors, like that. Number one. The second figure I would like to take your, focus on that. That is under trial and convicted. अंडर ट्रायल वो कैदी होते हैं कि जिनको अभी सजा नहीं मिली है, वो अपराधी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन किसी कारणवश से उनके ऊपर कोई डाउट हुआ या किसी प्रेशर में सोसाइटी से उनको उठाया गया और जेलों में डाल दिया गया। 3-3 साल 5-5 साल उनके ऊपर हियरिंग चल रही है। जुडिशरी सिस्टम के ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता यहां पर। और पता पड़ता है कि 5 साल के बाद में उनके खिलाफ वो एक्चुअल अपराधी थे ही नहीं। इस टाइप की जो पॉपुलेशन है अंदर वो 70% है। Only 30% of inmates out of 5.5 lakh कैदीज they are convicted, 70% are under trial, and their average retention is 3 months average retention. There are few people who have been there for 5 years also, but average is 3 months. यहाँ पे अंबेडकर जी की एक बात याद आती है जो बहुत प्रेरणादायक है। वो कहते हैं कि अगर किसी को दहाड़ना है और जीवित रहना है और अपने सम्मान के साथ जीवित रहना है तो शेरनी का दूध पीना पड़ेगा। और वो शेरनी का दूध क्या है? शेरनी का दूध है शिक्षा। Only education is the power which gives you all power or rights to live in this society in a dignified way. तो जब उसका एनालिसिस करते हैं उस रिपोर्ट का, तो ये पाते हैं कि लगभग 70% कैदी ऐसे हैं कि जो या तो अनपढ़ हैं या अनपढ़ जैसे हैं। तो क्या इस सोसाइटी में, इस देश में वही लोग क्राइम करते हैं जो इलिटरेट हैं, या हमारे आपके जैसे पढ़े लिखे लोग उनकी इलिटरेसी का फायदा उठाते हैं? उनको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो कहाँ जा रहे हैं। पुलिस आती है, उनको उठा के ले जाती है, हमारे आपके जैसे लोग उनसे साइन कराते हैं, एंड दे आर बीइंग डिक्लेयर्ड कन्विक्टेड और क्रिमिनल। एंड द अदर डार्क फेस इज एक्सेप्टेंस इन द सोसाइटी। व्हेन दे कम बैक टू द सोसाइटी, क्या हम लोग उनको खुले बाहों से उनको स्वीकार करते हैं, चाहे उन्होंने क्राइम किया हो या ना किया हो? Keeping in all these things in mind, because I come from an academic institution, और यहाँ हमारे एक स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं, सो सारे स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करते हुए वी ट्राई टू क्रिएट अ academic ecosystem in the prisons. And then properly, because I come from a management institute, so we thought first we'll do a need assessment, then we established the academic ecosystem, and then with a interval of 1 year, 2 year, we'll do the impact study of that. तो उत्तर प्रदेश के मेरठ से लेके लखनऊ तक के अपने स्टूडेंट्स के साथ में, अपने पार्टनर्स के साथ में मिलकर के वहाँ सबसे पहले लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की। जेल मैनुअल स्टेट का हक है, और उसमें कहा जाता है कि हर स्टेट में उनके रिहेबिलिटेशन, कारागार सजा गृह नहीं है इंडिपेंडेंट कंट्री में, कारागार सुधार गृह है, पुनर्वास गृह है, लेकिन उनको सजा गृह में तब्दील किया गया है। तो पुनर्वास के लिए, पुनरुत्थान के लिए गवर्नमेंट कर रही है, करना क्या चाहिए, उनकी जो प्रायोरिटीज है वो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन एज एन एनजीओ, as a corporate houses, this becomes our responsibility also to look that part of the community also, that how we are doing this. और जो उसका impact आया, क्योंकि टाइम कम है, मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि as of now we have established around 15 prison libraries, और उसका जो impact निकल के आ रहा है कि जो regular quarrels थे वो कम हुए हैं, suicidal attempts थे वो almost
90% कम हुए उन जेलों में जहाँ पे पुस्तकालय स्थापित हुए हैं। आपस में जो झगड़े होते थे वो कम हुए हैं और लिटरेसी रेट इम्प्रूव हुई है, बिकॉज एक टाइम के साथ में, मैच्योरिटी के साथ में थॉट्स आपके अंदर होते हैं, आप केवल उनको लेखन बंधन नहीं कर पाते हैं। जब आपको वो एनवायरनमेंट मिलता है तो वो आप भी कर पाते हैं। कई सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, सक्सेस स्टोरीज़ हैं जो जेलों में जाकर के आपको पता पड़ती हैं। सो विद दीज वर्ड्स ओनली I'll conclude my talk for the day, and I'll request you all to become a partner of other jail authorities. Now, I'm not saying that become a partner of BIMTech Foundation, but wherever you're working, there might be prisons, do some work for them also. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your words and enlightening us with your stories. We next have Vivesh Prakash, Vice President and Head of CSR Jubilant Ingrevia Limited. Can we have a huge round of applause and welcome him on the stage? Thank you. Thank you, Ruzen ji, for organizing such event where on daily basis, in every event we are learning something. मैं अगर बोलूँ मैंने इसके पहले भी कई बार डिस्कशन करी है कि जो CSR है, मुझे लगता है CSR की ज़रूरत पड़ती ही ना अगर हम 4P के ऊपर काम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है उस 4P में मैंने आज एक नई P जोड़ी है, दैट इज़ पार्टनरशिप। 4P जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि CSR जब हम बात करते हैं हमेशा 2% की बात करते हैं, लेकिन अगर 4P है तो वो 98% की भी बात करते हैं कि अगर हम बिजनेस अच्छे से करें तो शायद हमें CSR की भी आवश्यकता ना पड़ेगी। क्योंकि अगर हम लोग पिछले 100 साल का इतिहास देखें अपने भारत में ही जो औद्योगिक क्रांति हुई है, तो वही कंपनी आज है जिन्होंने वो जो 3 P's है मेजर उस पर काम करी है और चौथा P उन्हें अपने आप मिला है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि अगर हम 5वें P पे काम करेंगे तो हमारी जो जर्नी है वो और अच्छी होगी, सस्टेनेबल होगी। वो जो 4P हैं जो मैंने अभी तक जो डाली थी, जिसमें 5वां P के ऊपर भी मैं अभी बात करूँगा, कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जो लोग हैं, पीपल हैं जो आपके साथ काम करते हैं। मैं अभी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो NGO हो या कोई फॉर प्रॉफिट कंपनी हो या कोई दूसरी कोई संस्था हो, तो जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, आप उनका ख्याल रखें, ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी, आपके लोग भी आगे बढ़ेंगे और साथ में एक सामंजस्य बनी रहेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी लंबे समय तक चलेगी। लेकिन वो जो लोग आपके साथ जुड़े हैं उसका मतलब सिर्फ आपके एम्प्लॉय नहीं हैं, वो भी लोग हैं जो आपकी कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप जो इन्वेस्ट करते हैं या जो आपको सपोर्ट करते हैं। दूसरे वो भी लोग हैं जो आपके बिजनेस से इम्पेक्टेड हैं। एक और लर्निंग मेरी थी, जब भी मैं CIMP पटना में एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छी चीज़ थी। वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए हुए थे जो चीफ मिनिस्टर के एडवाइज़र भी हैं। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि CSR शुड कवर, और उनके जो इनकम पास है उसमें जो हम लोग बोलते हैं क्रैडल टू ग्रेव, कि एक प्रोडक्ट बनती है और इसके बाद वो लास्ट में जहाँ यूज होती है, जहाँ पे उसका एंड यूज है, हमें उस पूरे इकोसिस्टम के ध्यान देना चाहिए। यूजुअली एक CSR एक्ट में एक प्रोविज़न डाली गई कि आप जहाँ पे आपका ऑपरेशन है, आप उसके आसपास को आप प्रायोरिटी देंगे। अगर एक माइंस है तो आप उसके आसपास के कम्युनिटी को आप प्रायोरिटी देंगे, लेकिन उस माइंस की जो प्रोडक्ट है वो जहाँ पे यूज़ हो रही है, अल्टीमेटली प्रॉफिट वहाँ से जनरेट हो रही है। अगर हम आयरन ओर कहीं से लेते हैं तो उसको हम स्टील बनाते हैं, स्टील कहीं बेचते हैं, जो अगर ख़रीदने वाला ना खरीदे तो आपके वो आयरन ओर निकालना भी आप छोड़ देंगे। तो वो भी आपका एक स्टेक होल्डर है, मतलब आपको उसके लिए भी सोचना चाहिए। तो ये एक अच्छी थॉट थी, मुझे लगता है वो हमारी लर्निंग थी उस वर्कशॉप की, जो कि शुरुआत में उन्होंने बोली थी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, आप परसेंटेज ज़्यादा और कम हो सकती है, लेकिन उन्हें भी हमें उस इनकम पास में शामिल करनी चाहिए कि हमें उन्हें वो भी हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। तो कंज्यूमर जहाँ पे है, जो कंज्यूमर स्टेट है, हमें वहाँ पे भी CSR की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। जो दूसरी P है, जो पीपल के बाद अगर मैं बोलूँ कि वो है हमारी प्लैनेट, कि अगर हम जो भी काम करें हमेशा ख्याल रखें कि हम, जैसे अभी जिंदल के बारे में बता रहे थे, और भी जो माइनिंग कंपनी है या कोई भी दूसरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, अगर हम इतना ख्याल रखें कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में इन्वायरमेंट को हम
का ख्याल रखें कि हम उतना ही दोहन करें। देखिए वो तो होगी, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगी, क्योंकि रिसोर्सेस हमें इसी क्लाइमेट, इसी अर्थ से लेनी है, इसी यूनिवर्स से लेनी है, तो वो इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन हम उतना ही लें जितनी आवश्यकता है, उससे ज़्यादा ना लें, तो जो वेस्टेज ना करें कम से कम। तो ये ख्याल रखने ज़रूरी है कि अगर हम उस प्लैनेट का ख्याल रखेंगे, ये निश्चित रूप से आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आगे बढ़ेगी, वो भी सस्टेनेबल होगी। तो जो दूसरा पी है वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो तीसरी पी है वो मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई भी कंपनी आज अगर अपने व्यवसाय शुरू करती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई सर्विसेज शुरू करती है, हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए वो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है हमारी, क्या वो उसकी आवश्यकता है समाज को, या हम सिर्फ एक लैविश ज़िंदगी जीने के लिए उस प्रोडक्ट या सर्विसेज को डेवलप कर रहे हैं। तो ये हमें देखना है कि क्या उसकी आवश्यकता है या नहीं है। अगर आवश्यकता है तभी हम उसके ऊपर काम करें। और आप देख लें पूरे जो 100 साल का इतिहास है, जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज पे काम किए वो कंपनी पहले भी थी, वो कंपनी आज भी है, या उन्होंने अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नीड बेस्ड अगर चेंजेज या मॉडिफिकेशन नहीं करी तो वो कंपनी आज नहीं है। तो आप किसी भी कंपनी का इतिहास ले लें जो अगर इतने वर्षों में है, तो कहीं ना कहीं आपको उसमें ध्यान में आएगा कि उन्होंने ये 3 पीस पे ध्यान दिया था। अगर हमने वो तीनों चीज़ों पे ध्यान दिया तो जो चौथा पी है वो प्रॉफिट अपने आप आएगी, निश्चित रूप से आएगी, क्योंकि वो प्रॉफिट इज़ बाय प्रोडक्ट ऑफ एनी बिजनेस। वो आपका कारण नहीं है, वो आपका पर्पस नहीं है। बिजनेस का पर्पस वो 3 जो पी है, जो पीपल हैं, प्लैनेट है, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, वो होनी चाहिए, प्रॉफिट अपने आप आएगी। लेकिन जो 5वां पी की जो मैं बात कर रहा हूँ, आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई कि इस पूरे प्रोसेस में अगर हम लोगों ने अगर अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विसेज को अगर सस्टेन कराना है तो हमारी पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर से मैं बोलूँगा, पार्टनरशिप, यूजुअली लोग बोलते हैं पार्टनरशिप बराबर वालों में होनी चाहिए, मैं इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। खासकर कंपनी हो सकता है वो कर ले, बड़े लोग हो सकता है कर ले, लेकिन बीइंग अ डेवलपमेंट प्रोफेशनल, कम से कम जो CSR में लोग हैं या जो इस काम से जुड़े हैं, हमारा पर्पस ये होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों से पार्टनरशिप करें जो लोग हमसे नीचे हैं, हमसे वो कम ताकतवर। जैसे उन्होंने बोला कि अगर आंधी चलेगी तो दिया बुझ जाएगा, लेकिन अगर उस दिया वाले से अगर हमने पार्टनरशिप कर ली तो वो आंधी भी चलेगी, वो दिया भी नहीं बुझेगी, वो दोनों काम होगा। तो पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है कि हम उनके साथ करें और उनको उसका भागीदार बनाएं। अदरवाइज अगर हम बराबर की बात हमेशा सोचेंगे तो वो जो मार्जिनलाइज है वो कभी ऊपर नहीं उठेगा। जो अभी इसके पहले सीताराम गुप्ता जी ने बताया कि 2047 तक हम सारे लोग मिडिल क्लास से ऊपर हो जाएंगे, वो तभी होंगे जब ये सोच हमारे साथ होगी कि हमें एम्पावर करनी है लोगों को, हमें उनको दबाना नहीं है, हमें सिर्फ आगे नहीं बढ़ना है लेकिन हमें एम्पावर भी करना है। कुछ एक एग्जाम्पल है, अब हमारे मैं जुबिलेंट भरतिया ग्रुप से हूँ, तो इसकी एक फाउंडेशन है। ये भी हमारी लर्निंग है कि हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत करी थी, एक छोटे से जगह पे गुजरात में। एक प्रोडक्ट थी हमारे नीम पत्ते हमें चाहिए थे, नीम के पाउडर चाहिए थे। वो सिर्फ इसलिए कि एक प्रोडक्ट बनानी थी जो एनिमल न्यूट्रिशन में जाती है, जैसे लीवर की टॉनिक हम कहते हैं, वो जानवरों के लिए लीवर टॉनिक बनती है। वो नीम की पत्ती किस कोविड के समय नहीं मिल रही थी, लेकिन उन्होंने फिर हम लोगों ने सोचा क्या इस नीम तो पूरे देश में है, तो क्या ये हम वहाँ पे क्यों नहीं सोर्स कर सकते। तो सप्लाई चेन की वो दिक्कतें थी, हम लोगों ने उनके साथ बात करी कि क्या हम लोग इसके लिए कुछ काम कर सकते हैं। बोले कि आप यू कैन एक्सप्लोर इट। इतना ही था हमारे लिए ट्रिगर। वहाँ से हम लोग अपने जो महिलाओं की ग्रुप है उनसे बात करी, उनके साथ पार्टनरशिप करी। अब देखिए, अगर पार्टनरशिप हो सकता था कि हम किसी ऐसे बड़े बिजनेसमैन से कर ले जो जाकर कहीं से भी सोर्स करके ला के दे देता, हम लोगों ने महिलाओं से पार्टनरशिप करी, उस SHG से पार्टनरशिप करी, उनको एम्पावर किया, उनको ट्रेनिंग दी, उन्होंने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया। उसी कोविड के समय उन्होंने नीम की पत्तियां तोड़ी, उसे ड्राई किया, उसकी पल्वराइजेशन की, प्रॉपर उसकी स्क्रीनिंग करी, एंड देन वो सप्लाई करी, क्वालिटी अप्रूव करी, एंड देन वो सप्लाई चेन जो है पूरी डेवलप हुई। और वो आज वो भी एंटरप्रेन्योर हैं, उनकी अपनी इंटरप्राइज चल रही है, हमारी अपनी कंपनी भी चल रही है। एक प्रोडक्ट 2000 महिलाओं को रोजगार दे रही है आज के तारीख में, 2000 महिलाओं को एक प्रोडक्ट। इसके पहले अगर मैं बोलूं कि कोई एक बिजनेसमैन शायद उसका पैसा ले रहा होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि हमें सोचना होगा कि हम किन के साथ पार्टनरशिप करें। अगर हम इनके साथ पार्टनरशिप करेंगे तो हम बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बिजनेस इज़ नॉट जस्ट फॉर मेकिंग प्रॉफिट। मैंने बोला अगर वो हमारा जो पर्पस है वो 3 P
पी जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। अगर ये पार्टनरशिप हम करते तो वो ये 3 पी भी पूरी होगी और प्रॉफिट तो अपने आप आएगी। प्रॉफिट निश्चित रूप से होगी, अगर प्रॉफिट आएगी तभी बाकी सारे काम होंगे। ये मेरी अपनी लर्निंग है कि अगर हमें पार्टनरशिप करनी है तो हमें बराबर वालों से नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके साथ करें जो जी जान से हमारे लिए काम करेंगे, हमारे साथ होंगे और हम उनके लाइफ में भी कुछ इम्पैक्ट कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी, चूँकि ये लर्निंग एंड एक्सपीरियंस की बात थी, देखिए वो बिजनेस हाउसेस, गवर्नमेंट, निश्चित रूप से गवर्नमेंट बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे नॉलेज है, लर्निंग है, सब चीज़ है, वो नॉलेज बैंक भी हैं। लेकिन बिजनेसेस के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो हमेशा इनोवेशन करते, और क्योंकि गवर्नमेंट उनको कोई भी चीज़ सोचेंगे पूरे देश के लिए, पूरे इलाके के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए उनको एक साथ सोचनी है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जब छोटी कोई कंपनी है, वो पूरे एक साथ, वो पूरे नहीं लेकिन एक लिमिटेड सोच के साथ चलते हैं और उसमें वो बार बार इनोवेट करने की पावर है, क्योंकि उनकी जो इम्पैक्ट एरिया है वो सरकार से छोटी है। तो वो इनोवेशन करके अगर वो बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, नई सर्विसेज डेवलप करते हैं, तो ये चीज़ें हमें अपने CSR में भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जो भी यहाँ पे कम से कम CSR प्रोफेशनल्स हैं या NGO के लोग हैं, अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, अपने डिलीवरेबल्स में, अपने डिलीवरी के तरीके में, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो जो पुराने ढर्रे हैं NGOs के या किसी भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के, अगर हम सोचेंगे कि हम उसी तरह से काम करें और हमें कोई ग्रांट देगा और हम आगे बढ़ेंगे, तो वो नहीं हो सकता है। हमें इनोवेशन करने पड़ेंगे अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, प्रोसेसेस में, तभी हम आगे सस्टेन करेंगे, तभी हमें फंडिंग मिलेगी। लेकिन CSR के जो प्रोफेशनल्स हैं, खासकर जो कंपनी से जुड़े हुए, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी उस तरह के इनोवेटिव आइडिया आते, तो उनको आप सपोर्ट करें, तब निश्चित रूप से सबका भला होगा, सोसाइटी का भी भला होगा। क्योंकि विदाउट इनोवेशन मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ज़्यादा दिनों तक हम आगे बढ़ पाएंगे एक ही चीज़ से। तो ये 2 खास लर्निंग है और मैं चाहता था ये आप लोगों से शेयर करूं। थैंक यू रुजेन जी फॉर ब्रिंगिंग enlightened people in this house. Thank you. Thank you so much, sir. We would lastly have our next speaker, Rajan Kumar, Director, Vision Access Program, Vision Spring. Can we kindly have a huge round of applause for him and request him on the stage? Hi everyone, good afternoon. First of all, congratulations to India CSR team on their 30th Leadership Summit. And thanks to Rushan ji for continuing this session for multiple past years and sensitize all of us to do some such kind of the activity which is going to make some changes. So thank you, respected dignitaries of the dais and on the dais. So thank you for giving this opportunity. Now I will not take much time, and of course I'll use both the language. हम लोग जो यहाँ पे बैठे हैं बेसिकली हमको ये बहुत समझने की ज़रूरत है, और मेरी जो लर्निंग है, काफ़ी कम दिनों से हूँ मैं इस सेक्टर में, बट हमारा जो सबसे पहला एक दायित्व बनता है खासकर CSR का और NGO का, वो एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम समाज, सरकार और बाज़ार तीनों को कैसे एक साथ कन्वर्ज कराएं। ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम को लेके उसको इरेडिकेट कर देंगे कंट्री लाइक इंडिया में, सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोच थोड़ी गलत है। हमारा काम यह है कि हम कैसे कुछ इनोवेशन लेके आएँ, कैसे कुछ हम उस पल्स को पकड़ें कंट्री में, जो प्रॉब्लम है इस कंट्री की, उसके लिए कुछ मॉडल्स लेके आएँ, और कैसे हम अपने बाजार, सरकार और समाज को एक साथ कन्वर्ज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जो गवर्नमेंट है हमारी, जैसे पहले भी रवि जी ने बताया और लोगों ने भी बताया, गवर्नमेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है। अगर हम उसके साथ पैरेलल सिस्टम खड़ा करना चाहेंगे तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि अगर हम सोचें कि कोई इंटरवेंशन हम पैरेलल सिस्टम खड़ी करके इतनी बड़ी कंट्री को एड्रेस कर दें, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उस यूनिक
जो इनोवेशन है उसको टेस्ट करें। ये हमारे साथ एक बहुत बड़ी एडवांटेज होती है CSR के लिए और NGOs के लिए कि हमारे पास वो फ्री हैंड होता है कि हम किसी भी पायलट को टेस्ट कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। क्योंकि आप अगर किसी बड़े कंपनी में जाते हैं या कहीं भी हम लोग जाते हैं, वहाँ कोई भी इनोवेशन करना इतना आसान नहीं होता है। देयर आर सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड दे हैव द बिजनेस एंड ऑल दोज थिंग्स, सो यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट ऑल दोज लर्निंग्स। बट यहाँ सबसे बड़ी जो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम उन चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं, और अगर वो सक्सेसफुल होती है तो कैसे हम गवर्नमेंट तक उसकी एडवोकेसी करें, एंड अल्टीमेट गोल शुड भी कि गवर्नमेंट उसको टेकअप करे। जब तक वो नहीं होगा तब तक हम चेंजेस ला नहीं पाएंगे। सो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है मेरी भी, और हम विजन स्प्रिंग जिस ऑर्गेनाइजेशन से मैं बिलोंग करता हूँ, हम लोग जिस फील्ड में काम करते हैं कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम पे हम काम करते हैं उसके लिए गवर्नमेंट को सेंसिटाइज करें, कॉरपोरेट को सेंसिटाइज करें, पीपल को सेंसिटाइज करें, ताकि वो लोग इसको एड्रेस करें, इस प्रॉब्लम को कंट्री से रेडिकेट करें। हम बहुत छोटी इंटरवेंशन की बात करते हैं, चश्मे की। जब हम लोगों ने ये काम शुरू किया था तो बार बार लिटरेचर आता था जब हम हिस्ट्री देख रहे थे कि 700 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, 700 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, और इंडिया में 60 करोड़ लोगों को चश्मे की ज़रूरत है, और 40 करोड़ लोग जो हैं अभी भी चश्मे नहीं पहनते हैं। तो पहले समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कहाँ है। हम इसको हेल्थ केयर सेगमेंट में पार्क करके बैठे हुए हैं। अगर ये हेल्थ केयर की प्रॉब्लम होती तो टीवी के जैसे इरेडिकेट हो गई होती, पोलियो की तरह इरेडिकेट हो गई होती, कोविड की तरह एड्रेस हो गई होती। एक्चुअली हमने इसकी पोजीशनिंग गलत कर रखी है हेल्थ केयर में, जहाँ ना अभी सरकार को इसकी ज़रूरत है ना हम लोग को ज़रूरत है। हम लोग अपने आप को ऑब्जेक्ट की तरफ पुश करके, पुल करके एड्रेस कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, और उतनी नीड नहीं समझ में आती है। तो इसकी पोजीशनिंग चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करती है, कैसे ये आपके लर्निंग आउटकम को इम्पैक्ट करती है, कैसे ये रोड सेफ्टी को इम्पैक्ट करती है। और एक स्टडी है वो कहती है कि इसको चश्मा पहनने से आप जो प्रोडक्टिविटी है वो 22 से 34% इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो हमारा जो पिच है, 2019 में सुरेश प्रभु जी के साथ हमारी एक मीटिंग हो रही थी, और उस समय कंट्री अभी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रही है कि कंट्री लाइक इंडिया की GDP जो 10% के आसपास होनी चाहिए, ये 7-8% पे ही क्यों स्टैग्नेंट है, कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं। सो हमारा एक छोटा सा उनको सजेशन था कि जो आई ग्लासेज है वो जो 22 से 24% की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करता है, अगर कंट्री के जो ये 24 करोड़ लोग हैं जिनके पास ग्लासेज नहीं हैं, अगर वो ये ग्लासेज आप उनको प्रोवाइड करा दें तो इस देश की जो GDP है वो 5% इंक्रीज़ हो जाएगी, जो हमारी स्टडी और एनालिसिस कहती है। तो आप करो जो करना है, बट इस तरह की छोटे इंटरवेंशन को भी अपने किटी में इंक्लूड करो, जो छोटी छोटी चीज़ें इस देश को बहुत बूस्टअप देंगी। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बिकॉज आई नो कि मैं लास्ट अभी बिल्कुल लंच के बीच में खड़ा हूँ। सो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, हमने कभी रग पीकर्स को चश्मे पहनते नहीं देखा है, और देखा है तो बहुत रेयर देखा है। हमने वेजिटेबल वेंडर को नहीं देखा है, हमने रिक्शा पुलर को नहीं देखा है, वीवर्स बुनकर को नहीं देखा है। हमारे देश में रिफ्रैक्टिव एरर 60% है, हर दूसरे आदमी को चश्मे की ज़रूरत है। अब आप समझिए अगर 22% हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, और ये जो कम्युनिटी की मैं बात कर रहा हूँ जिनकी अर्निंग 300 से 400 रुपये पर डे है, जिससे उनका घर चलता है, अगर वो चश्मे की वजह से 20% प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बढ़ जाता है, और 60 से 80 रुपये उनकी अर्निंग बढ़ जाती है, सोचने की बात है। बिकॉज आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग उस फील्ड में काम करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उस कम्युनिटी की अर्निंग अगर 80 रुपये बढ़ती है, मतलब कि उसकी पूरी फैमिली दूध पी सकती है और मिठाई खा सकती है। वो हैप्पीनेस हम ऐड करना चाहते हैं उस फैमिली में। जो चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैं लास्ट एक समअप करूँगा। हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करी है, और हम उसकी एडवोकेसी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो हमसे जुड़े हुए हैं। हम एक उज्ज्वल दृष्टि अभियान, हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है जो हम गवर्नमेंट को जिसके लिए सेंसिटाइज कर रहे हैं कि इस देश में सब लोगों को चश्मा मिले, और उसकी जो लागत होती है वो 43,000 करोड़ होती है पूरे इंडिया को स्क्रीन करके चश्मे देने की। हमारे देश का जो हेल्थ केयर बजट है वो 60 से 65 हज़ार करोड़ है। हम उसके 60% बजट, एक साल की बजट की बात करते हैं। इसका जो सोशल इन्वेस्टमेंट पे सोशल रिटर्न है वो 23 टाइम्स है, हाईएस्ट एवर सोशल इन्वेस्टमेंट रिटर्न है इस किसी भी इंटरवेंशन में। ये इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आता है वो 12 साल के हेल्थ केयर बजट के बराबर होता है। तो इसकी एडवोकेसी हम कर रहे हैं, और हम इसलिए चाहते हैं कि आप
सब लोग इससे जुड़े, क्योंकि अकेले तो हो नहीं सकता। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि इंडिया में एक कोई प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर देगी, तो शायद हम गलत सोचते हैं। जब तक हम साथ मिलेंगे नहीं और इसकी एडवोकेसी नहीं करेंगे और गवर्नमेंट तक ये चीज़ें नहीं पहुंचेगी, गवर्नमेंट इसको टेकअप नहीं करेगी, तब तक ये सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मेरी लर्निंग यही है कि हमारा काम है समाज, सरकार और बाज़ार को सेंसिटाइज करना और कैसे फाइनल उस मॉडल को गवर्नमेंट तक पहुँचाना ताकि वो अपटेक हो जाए और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। सो थैंक यू रुसैन जी फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, sir. I would request Mr. Sensor to come on the stage so we can take the group picture. Can we have a huge round of applause for this wonderful dais as well as the experiences that they have shared with us?